Welcome to the English grammar class. I am here, your English teacher. Children, on the previous turn, we have started chapter 13, and in chapter 13 we have understood simple past tense और हमने उसकी exercises A and B भी complete कर ली थी. Simple past tense की exercise C was left. So today we will start a class with exercise C of simple past tense. After that we will continue with past continuous tense. So first let us see what is there in exercise C. Exercise C में children आपको क्या करना है? आपको sentences को rewrite करना है. What you have to do? You have to change the word. अलग-अलग tenses की के sentences दिए हुए हैं. आपको इसको simple past tense की verb में change करना है. Simple past tense में इसको change करना है. Let's see. First sentence is Kavita is watching television. Is watching television. This is present continuous tense. इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. अब हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट में चेंज करना है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हम टेंस को चेंज करने की बात करते हैं तो हम वर्ब को चेंज करने की बात करते हैं. तो वर्ब क्या है हमारा? वॉच. व्हाट इज द रूल? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है तो उसका रूल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. उसको कैसे, क्या रूल हम फॉलो करते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. तो कविता वॉच्ड टेलीविजन. वॉच की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वॉच्ड. Next is the teacher in the pink sari teaches English. So the teacher in the pink sari teaches. Here the verb is teach. Simple present tense है, es लग रहा है. हमें किस में चेंज करना है? पास्ट में चेंज करना है. सिंपल पास्ट में. वर्ब क्या है? टीच. We will change it to taught. हम किस में चेंज कर लेंगे इसको? taught में चेंज करेंगे. सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा? taught us English. My mother buys vegetables from the nearby shop. तो my mother, children, my mother bought. buys क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म क्या होगी buy की? bought vegetables from the nearby shop. I go to play hopscotch with my friends. Go is the first form. Main verb we have to change according to the rule. I told you. Went. second form क्या होती है? went. To play hopscotch with my friends. Mehul takes lessons to learn guitar. Takes simple present में बना हुआ है. We have to change it into simple past. तो वर्ब क्या है हमारी? take. सेकेंड फॉर्म क्या होगी? तो lessons to learn guitar. I am very tired after playing football. I am. Children यहाँ पर ये present continuous नहीं है, क्योंकि अगर ये present continuous tense होता तो यहाँ पे क्या आता? ing. I am tired, right? तो यहाँ पे क्या है? ing नहीं है. Don't get confused कि present continuous tense. These are the passive voice. ये passive है. तो here यहाँ पर क्या है? Simple present का passive voice है, जो आप आगे की बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. तो यहाँ पर जो एम आ रहा है इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? Was very tired after playing football. Next, after that, they win every match they play in school. So they win. Again, second form क्या होगी? They won every match they play. Second form played in school. Next comes when they put water in the freezer, it freezes. तो when we put की second form put ही रहती है. Water in the freezer, it. अब ना freeze की second form क्या होती है? Yes, froze. F-R-O-Z-E. And third form क्या होती है? Frozen. Very good children. After that we will continue with past continuous tense. अभी मैं आपको explain करूँगी कि past continuous tense क्या होता है. Tells us about the actions that were going on. Past continuous tense क्या होते हैं? जो actions किसके बारे में बताता है? जो actions going on चल रहे हों, continue हों at particular time in the past. किसी दिए गए टाइम में, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर पास्ट की टाइम जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर वो एक्शंस कंटिन्यू हो, चल रहे हो. दोज आर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वो क्या है हमारे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं चिल्ड्रन. एग्जाम्पल्स, द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग. हम यहाँ पे कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? मॉर्निंग की बात कर रहे हैं. उस टाइम पे क्या हो रहा था? बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल. बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, राइट? तो एक पर्टिकुलर पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है और उस टाइम खेल रहे थे.
कंटिन्यूएशन में था, जो प्लेइंग था, दे वर प्लेइंग, खेल रहे थे वो उस टाइम पर। सेम आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम लास्ट नाइट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर टाइम क्या है, लास्ट नाइट। आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, पढ़ नहीं चुका था, नॉट स्टडिंग। आई वॉज स्टडिंग कंटिन्यू था, जो एक्शन था वो क्या था, कंटिन्यू था। तो चिल्ड्रन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बताते हैं कि पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पर जो भी एक्शन गोइंग ऑन हो, चल रहा हो, कंटिन्यू हो। नाउ हाउ टू मेक पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फ्रेम कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। फॉर दैट वी हैव टू फॉलो रूल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको ग्रामर का रूल फॉलो करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इन एवरी सेंटेंस, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है प्लस V1 विद ING। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगा रहे थे, इज एम आर लगा रहे थे, V1 विद ING। यहाँ पास्ट में क्या लगाएंगे, वॉज और वर्ब, दैट्स इट। बाकी रूल्स वही फॉलो होंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉलो होते हैं। इज इट क्लियर? आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा चिल्ड्रन। आफ्टर दैट अब नाउ द क्वेश्चन इज मैम वॉज का यूज करें और वर्ब का यूज करें। ये तो दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, वेरी इजी। वॉज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वर्ब का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। लाइक इन द एग्जांपल, और आई के साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में क्या करते हैं, एम करते हैं, यहाँ पर अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं है आई के लिए, वॉज ही यूज करेंगे। बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब आ रहा है, आई है, वॉज आ रहा है। शी वॉज डांसिंग, तो शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, या राधा वॉज डांसिंग, तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी विल यूज वॉज। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। लेट अस डू एक्सरसाइज डी। ABC हमने कर लिया जो सिंपल पास्ट टेंस की थी, अब हम एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी, इन एक्सरसाइज डी चिल्ड्रन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्रैकेट में हमको वर्ब्स दी हुई है, वर्ब्स आर गिवन इन दी ब्रैकेट। सो लेट अस सॉल्व इट। राकेश डैश, ब्रैकेट में वर्ब है, टॉक टू मधु व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। टॉक रूल क्या है हमारा, वॉज वर्ब, V1 विद ING, तो राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल बी यूजिंग वॉज टॉकिंग। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट, शिल्पा डैश रीड अ नोवेल व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। शिल्पा अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज आएगा, रीड ING, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द बॉयज डैश स्टडी, तो क्या आएगा यहाँ पर, वर्ड स्टडी। बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आएगा चिल्ड्रन, वर्ड स्टडी। नेक्स्ट, अखिल डैश प्रैक्टिस फ्लूट इन द इवनिंग, तो अखिल सिंगुलर सब्जेक्ट है, अखिल वॉज प्रैक्टिसिंग द फ्लूट इन द इवनिंग। क्लास 5 वर वाइपिंग। नेक्स्ट, they were wiping. Children, when the last word of the verb is e और हमको उसमें ING ऐड करनी होती है तो वो लास्ट वर्ड e को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट ऑन स्टेटमेंट 6, रोहन डैश स्माइल व्हेन आई सॉ हिम, तो रोहन वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा, स्माइल है तो फर्स्ट फॉर्म स्माइलिंग, फर्स्ट फॉर्म विद ING स्माइलिंग आएगा। नेक्स्ट कम्स समीर डैश पेंट दिस पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर लास्ट वीक, तो समीर वॉज पेंटिंग। नेक्स्ट क्या आएगा चिल्ड्रन, क्वेश्चन 8, द थीफ हाइड बिहाइंड अ पिलर व्हेन द गार्ड सॉ हिम, वॉज हाइडिंग, बिकॉज थीफ क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा। हाइड फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देंगे, ई रिमूव कर देंगे बिकॉज वी आर यूजिंग ING। चिल्ड्रन नाउ एक्सरसाइज ई आपको होमवर्क में करना है। डू एक्सरसाइज ई ऑफ चैप्टर 13 of grammar book, this is your homework children, I will be sharing the answer key also, ठीक है, so please complete your work, do these exercises in your book with pencil not with pen। आपको कैसे करनी है, pencil से exercises करने हैं। please do your work, complete your work, whatever the work is being sent उसको timely अपने same day आप complete कर लेंगे तो no work will be pending। Thank you and have a nice day.